پھر وہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے، لینا کیا ہے، دینا کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ وہ کلچر جو کچے کا علاقہ تھا، اس کا جو کلچر تھا، وہ اب اس کی جو سی جڑیں ہیں وہ آپ کو سمندری، فیصل آباد اور اس کے نواحی جو سے چکوک اور قصبے ہیں، باقاعدہ ہائر کی ہوئی ہیں لڑکیاں، پولیس بھی شامل ہے، کچھ وکلاء بھی شامل ہیں جو ہر طرح سے ان کو سہولت دیتے ہیں، پروٹیکشن دیتے ہیں۔ کال کرتے ہیں، پہلے کال چلے گی، وہ آپ کا حال پوچھے گی، اس کے بعد آپ کہیں گے کون ہے، پھر وہ بات آگے بڑھے گی، وہ کال کاٹ دیں گے آپ، وہ دوبارہ آپ بات کو بڑھائے گی، جس طرح بھی ہوگا۔ آج کل چیزیں کنڈوم وغیرہ استعمال کر چپکے سے پرس میں ڈالتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں وہاں پر، وہاں جا کر جی بیلونز وغیرہ جو بھی ہوگا وہ لے جا کر وہاں پر آگے بندے بیٹھے ہوتے ہیں تیار، ٹھیک ہے، وہ بندے تیار بیٹھے ہیں، وہاں سے وہ اس کا وہ ٹیسٹ اٹھاتے ہیں، کیمیکل جو سب کچھ مل جاتا ہے مواد، کہ وہ بندہ گھر میں بیٹھا ہے اطمینان سے، اس کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح جال میں پھنسا تھا، کیا ہوا، اس کو اسی وقت پتہ چلتا ہے جب پولیس اس کے اوپر سر پہ جب پہنچتی ہے FIR درج ہونے کے بعد۔ وہ ہنی ٹریپ، ہنی ٹریپ میں جو وہ سارا خاتون استعمال ہوتی ہے، پلانڈ ہوتا ہے، سب کچھ پلانڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سب پلان ہے، پہلے سے پلاننگ ہوئی ہوتی ہے، اور ان کا شکار پہلے سے ہی ٹریس ہو چکا ہوتا ہے، بندے کو پتہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں ادھر کو جا رہا ہوں، میں کسی کی نظر میں ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے لیے ہنی ٹریپ کا ایک نیا گروہ لے کر آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ ایسی انفارمیشن آپ کو دینے جا رہے ہیں جو آج کل المیہ بنا ہوا ہے، جو کہ ایک کاروبار بن چکا ہے۔ ہنی ٹریپ پہلے ہوتا تھا سندھ میں، اب پنجاب میں بھی ایکٹیو ہو چکا ہے۔ آپ کو اس کے متعلق آگاہ کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب امین جو کہ خود ایک جرنلسٹ ہیں۔ آپ سے آج یہ بات کریں گے اور آپ کو اس سارے گروپ کے متعلق جو ہے وہ انفارمیشن دیں گے۔ کیسے ہیں ثاقب امین؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ، جی دعائیں جی آپ کی۔ جی ثاقب امین صاحب، کیسے یہ گروہ ایکٹیو ہوا، کیا کہانی ہے اس کے پیچھے؟ جی یہ کہانی بیسیکلی جیسے آپ نے بات شروع کی ہے کہ یہ سندھ کے علاقے سے شروع ہوئی تھی۔ وہ کلچر جو کچے کا علاقہ تھا، اس کا جو کلچر تھا، وہ اب اس کی جو سی جڑیں ہیں وہ آپ کو سمندری، فیصل آباد اور اس کے نواحی جو سے چکوک اور قصبے ہیں، یہ گروہ بڑے اچھے طریقے سے یہ لوگ ٹریپ کرتے ہیں بندے کو۔ انہوں نے باقاعدہ ہائر کی ہوئی ہیں لڑکیاں، اور ان کے ساتھ ماشاءاللہ اب کہنے شرم آتی ہے ہمیں کہ پولیس بھی شامل ہے، کچھ وکلاء بھی شامل ہیں جو ہر طرح سے ان کو سہولت دیتے ہیں، پروٹیکشن دیتے ہیں، اور ان کو تقویت ملتی ہے تاکہ یہ گھروں کے گھر اجاڑ سکیں۔ دیکھیں صاحب بات یہ ہے، اصل میں کہانی یہ ہے کہ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، جی ٹھیک ہے جی، انسان دھوکہ کھاتا ہے۔ اب دھوکے کے لیے کس طرح یہ جال بچھاتے ہیں، ان میں مختلف طریقہ کار ہیں۔ انہوں نے کچھ لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں، کال کرتے ہیں، پہلے کال چلے گی، وہ آپ کا حال پوچھے گی، اس کے بعد آپ کہیں گے کون ہے، پھر وہ بات آگے بڑھے گی، وہ کال کاٹ دیں گے آپ، وہ دوبارہ آپ بات کو بڑھائے گی، جس طرح بھی ہوگا وہ آپ تک اپروچ کر لے گی، اور پھر جب دعوت گناہ کی طرف آپ کو راغب کرے گی۔ جی بالکل، دعوت گناہ دی جائے گی، پھر وہ راغب ہو جائے گا، پھر ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے جیسے بھی انٹر کورس یا جو کچھ بھی غلط کام ہونے کے بعد اس میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان میں سے وہ چیزیں اپنے پرس میں ڈال کر، جیسے کہ کیا استعمال ہوتا جیسے کہ انسانی رطوبت کو روکنے کے لیے جو آج کل چیزیں کنڈوم وغیرہ استعمال کر چپکے سے پرس میں ڈالتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں وہاں پر، وہاں جا کر جی بیلونز وغیرہ جو بھی ہوگا وہ لے جا کر وہاں پر آگے بندے بیٹھے ہوتے ہیں تیار، ٹھیک ہے، وہ بندے تیار بیٹھے ہیں، وہاں سے وہ اس کا وہ ٹیسٹ اٹھاتے ہیں، کیمیکل جو سب کچھ مل جاتا ہے مواد، اس کو بعد اس کے بعد DNA کر لیں یا جو بھی کہہ لیں، سپرمز مل جاتے ہیں، اور اس کے بعد جناب پھر کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ بندہ گھر میں بیٹھا ہے اطمینان سے، اس کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح جال میں پھنسا تھا، کیا ہوا، اس کو اسی وقت پتہ چلتا ہے جب پولیس اس کے اوپر سر پہ جب پہنچتی ہے FIR درج ہونے کے بعد۔ پھر وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے، پھر وہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے، لینا کیا ہے، دینا کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ تو وہ جو گروہ ہے جی وہ جب FIR یا اپلیکیشن والا جو پروسیس ہے، جو تھانے کا پروسیس ہے، اس میں وہ میڈیکل وغیرہ کا کیا کرتے ہیں؟ اپلیکینٹ تو پھر بن جاتی ہے نا وہ، ٹھیک ہے، وہ بی بی جو ہوتی ہے، جو لڑکی ہے
वो हनी ट्रैप। हनी ट्रैप में जो वो सारा खतौन इस्तेमाल होती है। प्लान होता है, सब कुछ प्लान होता है। ठीक है। सब प्लान है, पहले से प्लानिंग हुई होती है और उनका शिकार पहले से ही ट्रेस हो चुका होता है। बंदे को पता नहीं हो रहा होता कि मैं इधर को जा रहा हूँ, मैं किसी की नज़र में हूँ। ठीक है। वो नज़र में आ चुका होता है, उनके रडार पर चल रहा है सब कुछ। और मैंने सुना है कि जो नए नौजवान हैं जी। उन्हें ज़्यादा जो है वो अप्रोच किया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है। तो देखिए अभी हमारे माशरे में मंशियात का ज़्यादा इस्तेमाल, नई नस्ल को ड्रग्स की तरफ राग़िब करना, तमाम ज़िंदगी की इज़्ज़त और कमाई जो सी है एक ही केस में तबाह कर देने में ये ग्रोह जो सा है बड़ा महारत रख। ठीक है, फिर पैसों की कितनी डिमांड की जाती तकरीबन है? मैंने तो यहाँ करोड़ करोड़ तक भी सुना है, ठीक है। जो मंजर आम पर बातें नहीं आई। मैं जो मेरे जितने सामने पैसे बैठ के लगा बातें- के एक नौजवान जो है वो आउट ऑफ कंट्री किसी काम के सिलसिले में या स्टडी पे जा सकता है, उतने पैसे वो एक केस में ले लेते हैं। जी बिल्कुल, आप मेरी बात सुने। एक बंदा बेचारा रिटायर होता है, फ़र्ज़ करें, सपोज एक मिसाल देता हूँ आपको मैं, एक बंदा रिटायर होता है, 40-50 लाख रुपए मिला। जैसे ही मिला वो आया, घर में आके बैठा है, पैसे लेके भी बैठा, बच्चे से ये काम हो गया, वो तो सारी ज़िंदगी की कमाई चली गई ना उस बेचारे की। तो फिर क्या होगा? वो नस्ल तबाह हो चुकी है, जाहिर सी बात है केस बन जाएगा, फ्यूचर वो- दागदार हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, रिकॉर्ड आ जाएगा बिल्कुल, उसका। उसके बाद अच्छा, ये तो हो गया, केस कर दिया। जी जी जो पैसे लिए जाते हैं वो किस मद में लिए जाते हैं? किस सुलह की मद में लिए जाते जी, हैं जी, या जी वो जी अक्सर आपने देखा होगा आजकल FIRs बहुत सारी मंजर आम पर आ रही हैं, जिनमें ये कहा जाता है कि जी ये तो था ही नहीं, ठीक है, ये तो वो था ही नहीं। मैं ये पहले वो गलती से होता नाम- है, बाद में ये था ही नहीं। गलती से नाम आ गया, गलती या आप कह लें कि वो ये जो नाम है ये जो है वो एक्स्ट्रा नाम था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही। ऐसे ऐसे। जी साकिब अमीन साहब, ये पैसे कैसे हेंटते हैं? ये जो ग्रुप है पैसे कैसे सर लेते हैं? ऐसा है कि भाई ये करते ये हैं कि थाने से ही कुछ ऐसे टाउट और कुछ अहलकार बीच में मुलव्वस होते हैं। जब बंदा वहाँ पर फंसता है तो उनके जो वर्सा हैं उनको इस तरफ इशारा दे के बताते हैं कि आपके इस मसले का हल फलां बंदे ने करना है। और वो बंदा कौन होता है? वो बंदा इन्हीं का होता है, डील शुदा चौथा जो बंदा जो हनी ट्रैप का ग्रोह का सरगुना होता है। जी, ठीक है ना जी। वो देखने में आपको बड़े मुअज़्ज़ज़ नाम है, मेरे पास में नाम लेना नहीं भी मुनासिब चाहता। वजह ये है कि मैं ज़ाहिरी नई मोअज़्ज़ज़ कह लें, मोअज़्ज़ज़ ना कहें। जी मैं अभी मुआशरे में वो अपने आप को जिन्ना- मोअज़्ज़ज़ कहलाते हैं। जिन्ना लुच्चा उन्ना ही ऊंचा, जिन्ना लुच्चा और नहीं लुच्चा, सही कह ठीक रहे है हैं ना। जिन्ना लुच्चा उन्ना ही ऊंचा नाम है हमारे पास, प्रूफ भी है। इंशाल्लाह बात होगी, जब ज़रूरत पड़ेगी सामने भी आएंगे। अब यहाँ से आपसे मैं थोड़ा जिक्र करता जा रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है IG पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से और मुख्तलिफ़ हसास इदारों से, जिन्होंने मुल्तान जैसे शहर में इस ग्रोह का कला कमा किया, लाहौर में बहुत सारे ऐसे ग्रोह जो से हैं वो मंजर आम पर लाए, उनका कला कमा किया, रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी ऐसे लोगों को पकड़ा और उनका कला कमा किया। उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप थोड़ी तवज्जो फैसलाबाद जैसे शहर में, जहाँ पर अब ये ग्रोह सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक हो रहा है, अभी स्टार्ट समुद्री जी जी हो रहा है, मैंने कहा जी। समुद्री को बचाएं, फैसलाबाद को बचाएं, इस ग्रोह के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें और नस्ल को बचाएं। साकिब अमीन साहब, समुद्री में अभी तक कितने केसेस आपको इस चीज़ के पता लग चुके हैं? मेरी नज़र में तकरीबन कोई 17-18 तो आ चुके हैं जी। अच्छा, जी जिनमें से हाईलाइटेड कितने हैं? मीडिया में कितने आए हैं? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया? नहीं मीडिया में कोई नहीं आया। उसकी अच्छा। वजह यह है कि सबसे बड़ा मसला यह है कि शायद या लोग डर के नाम नहीं लेना चाहते, या इनका खौफ है कि पता नहीं अल्लाह जाने हम इस मामले में ना फंस जाएं। मैंने आपको बताया कि जिन्ना लुच्चा उन्ना ही उच्चा। अच्छा साकिब अमीन साहब, वैसे एक बात है, ठीक है, ग्रो एक्टिव है, एक पर्सन जी जिसको इस मामले में फंसाया जाता है, जी जी वो अपनी इज्जत बचाने के लिए ब्लैकमेल हो रहा होता है, तो आपको क्या लगता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? क्या ब्लैकमेल उन्हें होना चाहिए उन लोगों को? मेरा ख्याल में नहीं होना चाहिए, तो क्या उसका वो सद्देबाब कर सकते हैं? लेकिन यह है कि कानून तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता ना उनको। अच्छा, बात तो यहीं से शुरू होती है, कानून उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहा होता। वो लाख पीटे भी तो वो सच्चे नहीं होंगे। FIR तो कट चुकी होती है, अब उसको किस खाते में फिट करेंगे वो? नहीं, अगर ऐसा हो कि इदारा उस जुर्म की कार्रवाई ज़रूर करे,
कार्रवाई को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, जी कार्रवाई हो, लेकिन जो बंदे आदि मुजरिम हैं, जिन्होंने आदत बना ली है, जो जिसे आप कहते हैं कि एप्लीकेशन देने वाले जो लोग हैं, वो ज़ाहिर सी बात है उनका पहले भी तो रिकॉर्ड मौजूद है ना उन खातून का, कि ये पहले भी फलाने फलाने जगह पे ऐसे ऐसे मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ऐसे है कि एक इस तरह के जो ग्रोह है ना, वो उनका एक घर के अंदर एक दो औरतें ऐसी मौजूद हैं, जी नाम बदल कर, वल्दियत बदल कर, वो रिकॉर्ड उनका सामने शो नहीं था। एक केस हुआ, दूसरी ने दूसरा कर लिया। ये आपको मुरीद वाला, तरखानी, ये जो उनसे सदर समुंदरी और सिटी समुंदरी के 4-5 जो थाने जो से मौजूद है ना, समुंदरी शहर समुंदरी तहसील के जो से थाने मौजूद हैं, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ थानों में ये ग्रोह मुख्तलिफ जगह पर मुतहरक दिखाई देगा। अब मसला कुछ ये होता है, वहाँ पर कुछ टाउट्स बैठे हैं। अच्छा, मज़े की बात है कि उन टाउट्स की वजह से हम जैसे लोग थाने जाना भी पसंद नहीं करते। हम लोग तो जाते हैं किसी अपने काम के लिए, किसी की मदद के लिए भी जाएंगे तो दूसरा बंदा ये समझेगा शायद ये भी इस चक्कर से तुरे फिर दे। अब आप समझ तो कुछ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, ठीक है ना? बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। अल्लाह ताला हमें ना जी, वो कहते हैं ना, ए तायरे लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। बिल्कुल ऐसे ही। जी नाजरीन, ये ग्रोह जो है पहले समुंदरी में मुतहरक था, अब जो है फैसलाबाद में मुतहरक हो चुका है। समुंदरी में इन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और समुंदरी में इन्होंने आजकल कार्रवाई जो है वो थोड़ी स्लो की हुई है। उसकी वजह ये है, समुंदरी के कुछ जो प्रोफेशनल लोग हैं उन्हें इनका जो इस ग्रोह के बारे में पता लग गया था। जब लोग शिकायतें लेके गए कि मेरे साथ ब्लैकमेलिंग हुई है, मेरे साथ ब्लैकमेलिंग हुई है, इसमें कुछ वकला, हम निशानदेही नहीं कर रहे, सारे वकला एक जैसे नहीं होते, सब कुछ अच्छे कुछ बुरे ना सब पुलिस वाले एक जैसे होते हैं ना, लेकिन वो जो इस खेल का हिस्सा है वो तो अच्छे नहीं कहला सकते। कुछ पुलिस एहलकार जो इस काम में मुलव्वस हैं, उनको उनके नाम भी हम तक पहुंच चुके हैं। उनकी निशानदेही जो है वो साकब अमीन साहब ने कहा है कि मैं कर दूंगा इंशाअल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो। जी ठीक है, तो अगर कार्रवाई सरकारी इदारों की तरफ से नहीं होती तो फिर उन नामों को नशर करके उन पे कार्रवाई करवाई जाए। उम्मीद है कि हमारे इस दरख्वास्त भरे पॉडकास्ट के बाद बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ज़रूर इदारे मुतहरक होंगे और नई नस्ल को, कम से कम मैं पूरे पाकिस्तान को तो नहीं कह सकता, समुंदरी और फैसलाबाद यहाँ पर कम से कम थोड़ा सा बचाने की कोशिश करें। बहुत मेहरबानी होगी जी। नौजवान जो कि अभी नया नया जवान हुआ है, उसे अभी माशरती मसाइल का इतना पता नहीं होता, वो माशरे में नया नया बाहर निकलना शुरू करता है, उन लोगों को ये देखते हैं कि इस बच्चे को भी पता कुछ नहीं है, वो उसको लालच देकर इस गुनाह की तरफ जो है वो माइल करके उनको टारगेट करते हैं। उसके बाद उनके जो हैं वो मादा कह लें आप, स्पर्म कह लें, उसको जो है टेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले लिया जाता है। एक्शन लेने के बाद उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को सिर्फ़ और सिर्फ कागज़ों तक महदूद कर दिया जाता है। जब पैसों का लेन देन हो जाता है तो वो रिकॉर्ड में से उनके नाम जो है वो निकाल दिए जाते हैं। जी बिल्कुल। और कुछ लोग इन एफआईआर्स में ऐसे भी हैं जिनका ताल्लुक ही नहीं होता इस मामले के साथ, लेकिन उनके नाम दरमियान में रख के उनकी इज्जत जो है वो ख़राब की जाती है। बिल्कुल। इसलिए अगर कोई बंदा आपके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बनाता है, कोई आपके ख़िलाफ़ ऐसा एक्शन लेता है, तो आप आवाज़ उठाएं उसके ख़िलाफ़, ब्लैकमेल ना हो सके। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नए पॉडकास्ट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हमें दुआओं में याद रखें, नौजवान नस्ल को इस तरह के मुजरमों से बचाएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।